Okay. In the last lecture, we have started the types of operating system. Okay. In the yesterday's lecture, the voice was not proper. Okay. So again, today I am explaining the types of operating system. The first is batch operating system. Okay. The first is batch operating system. In the areas of 1970, okay, the batch processing was very popular. Kabhi in 1970s. Okay, 1970s, this operating system was used. Okay, in 1970, this operating system was used. Okay, so this type of operating system does not interact with the computer directly. Okay, means operating system is not directly installed in the computer. Okay, the operating system is different system, and your computer system is a different system in this case. Which type of operating system? Batch type of operating system. Okay, there is an operator. Okay, there is an operator which takes similar jobs. Okay, similar job मतलब क्या similar processing वाला काम. ठीक है, जो सिमिलर परफॉर्म करना है, प्रिंट आउट तो सब प्रिंट आउट एक साथ पहले कलेक्ट करना, उसका जो भी डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी वो ग्रुप बनाना. ओके, जब कोई स्कैन करना है कोई डॉक्यूमेंट, तो जिसको स्कैन करना है वो पेपर पहले एक साइड ले लेना, उसका ग्रुप बनाना. ओके, तो दैट इज कॉल्ड द जॉब्स. ओके, जो भी काम करना है, प्रोसेसिंग करना है, दैट इज कॉल्ड द जॉब्स, हैविंग द सेम रिक्वायरमेंट्स एंड ग्रुप देम इनटू द बैचेस. ओके, एंड ग्रुप देम इनटू द बैचेस. It is responsibility of the operator to sort the jobs with similar needs. Okay, जो भी यूजर्स है उसको जो भी अपना काम करवाना है, all users will submit their jobs to the ऑपरेटर्स. किसको सबमिट करेंगे? ऑपरेटर्स को सबमिट करेंगे. देन ऑपरेटर क्या करेगा? जो भी उसके पास जॉब्स आया, जो भी उसके पास काम आया, उसको सेम ग्रुप में डिवाइड कर देगा, बैचेस क्रिएट करेगा. ओके, देन ऑपरेटर विल सबमिट दैट जॉब्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, एंड फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक्सेस करेगा, एंड देन सीपीयू क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम में से वो जॉब्स लेके उसको वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा. व्हाई? बिकॉज फाइनली एग्जीक्यूट का काम किसको, कौन करेगा? सीपीयू. CPU will execute all the data. Execute कौन करता है? CPU करता है. Okay. So ऐसे operating system was working. Okay. As I told you, in the area of 1970, the batch processing was very popular. Okay. The jobs were executed in batches. Okay. In short, आपको इतना ही याद रखना, in the batch operating system जब यूज होता था at that time, जो भी जॉब्स, जो भी काम करना, उसको किसमें डिवाइड करते थे? पहले बैचेस में ग्रुप्स बनाते थे, एंड देन आफ्टर, ओके, then after वो batches were executed by the CPU but through the operating system. Operating system उसको access करता था, then उसको CPU execute करता था. ठीक है, people were used to have a single computer which was called mainframe. ठीक है, at that time एक ही सिस्टम सब लोग यूज कर रहे थे, that is called mainframe. Okay, mainframe systems थे, types of computers. Mainframe is a type of computer that was very big computer. Okay, in batch operating system, access is given to more than one person. Okay, they submit their jobs to the system for execution. Okay, they submit their jobs, respective job to the system for the execution. The system pool of jobs in queue on the basis of first come first serve and then execute the jobs one by one. Okay, जो भी यूजर्स है उसको अपना जो भी काम करना है वो क्या करेगा? किसको सबमिट करेगा? ऑपरेटर्स को. देन ऑपरेटर्स क्या करेगा? उसको डिवाइड करेगा बैचेस में. ओके, एंड देन वो सबमिट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को. ठीक है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम में से सीपीयू क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट करेगा वन बाय वन. तो जो पहले यूजर आएगा अपना काम जो ऑपरेटर को पहले देगा, उसका काम पहले होगा. ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब जो पहला है उसका पहला एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, the users collect their respective output when all the jobs get executed. Okay, आउटपुट आ गया, प्रिंट आउट निकल गया, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद यूजर आके अपना क्या करेगा? प्रिंट आउट लेके जाएगा. तो प्रिंट आउट का काम है, स्कैनिंग का काम है, स्कैनिंग का जो भी सॉफ्ट कॉपी दैट इट वाज टेकन. ओके, फॉर एग्जांपल आप बैंक में जाते हो. ठीक है, बैंक में जाते हो तो पासबुक प्रिंट करवाना है. ठीक है, इफ यू वांट टू प्रिंट योर पासबुक, तो आप क्या करते हो? वहाँ पे एक ऑपरेटर बैठा हुआ रहता है मशीन के पास. ठीक है, तो यू हैव टू सबमिट योर पासबुक टू दैट ऑपरेटर्स. तो वो क्या बोलते हैं? यहाँ पे रख के जाओ, फिर लेके जाना. ओके, जब उसके पास थोड़ा 3 to 4 पासबुक अगर आ जाता है तो वो क्या करता है? देन उसको सिस्टम में डालकर प्रिंट आउट करके, पासबुक प्रिंट आउट करके देन वो डिस्ट्रीब्यूट करता है यूजर्स को. तो जो यूजर्स पहले है उसका वो सबमिट करता है. तो सेम थिंग, तो जो कंप्यूटर्स का जो सिस्टम है दैट इज बैंक सिस्टम जो है, दैट इज अ batch operating systems, you can say.
Okay, the second is payroll system. मैंने आपको बोला था okay, yesterday. Payroll system are also examples of batch operating system. Okay, what is the meaning of payroll? Payroll मतलब क्या? जो कंपनीज में या तो वर्किंग एरियाज में जहाँ पे एम्प्लॉयज को पे करते हैं, ठीक है, जो वो सिस्टम जो है दैट इज अ टाइप ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, मतलब एम्प्लॉयज का जो भी इंफॉर्मेशन है, ऑल द इंफॉर्मेशन जो है वो क्लार्क को दिया जाता है. ठीक, क्लार्क के पास होता है. देन क्लार्क क्या करता है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी सॉरी एम्प्लॉयज, उसका इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर करते हैं, सिस्टम में स्टोर करते हैं. सिस्टम में स्टोर करते हैं, देन उसका सैलरी वगैरह काउंट करता है और एक साथ ओके एट द एंड ऑफ द मंथ सबको क्या करता है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करता है या तो सैलरी स्लिप देता है. दैट इज कॉल्ड द पेरोल सिस्टम. उसको क्या बोलते हैं, पेरोल सिस्टम. पे करना, ठीक है, एम्प्लॉयज को पे करना, उसका जो पे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड द पेरोल सिस्टम. तो इन शॉर्ट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, दैट इज अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, so there's advantages, disadvantages. What is the advantages? उसके बाद see, this is a mainframe computer. इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स पहले रहते थे, ठीक है, अभी तो स्मॉल से, अभी तो नाउ टैब, तो आप कहाँ पे भी इजीली कैरी कर सकते हो. ठीक है, पाम कंप्यूटर्स, पाम लैपटॉप्स नाउ अवेलेबल. So, what is the advantages of batch operating system? तो multiple users can share the batch system. Okay, multiple users अपना अपना जो भी काम से, multiple मतलब क्या, बहुत सारे, multiple users can share the batch system. Okay, the idle time for batch system is very less. Okay, what is idle time मतलब क्या, free time. Okay, batch system rarely free होता है. Why? क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ print करने के लिए काम रहता है. Okay, it is easy to manage large work repeatedly in a batch system. कोई बड़ा काम है तो वो भी easily handle कर सकते हैं through the batch operating system. What is the disadvantages क्या है? The computer operator should be well known with the batch system. Why? Because operator have to handle the system. यूजर्स डायरेक्टली सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, कौन हैंडल करता है, ऑपरेटर. तो जो ऑपरेटर हैंडल कर रहा है उसको नॉलेज होना चाहिए रिगार्डिंग द सिस्टम, तो इट he or she can handle the system. Okay, batch operating system are hard to debug. Okay, what is the meaning of debug? Debug मतलब क्या, कोई प्रॉब्लम्स है तो कोई फॉल्ट अकर हो रहा है. ओके, ड्यू टू सॉफ्टवेयर और ड्यू टू हार्डवेयर की वजह से कोई प्रॉब्लम्स या तो कोई फेलर अकर हो रहा है. ओके, दैट इज कॉल्ड द डीबग. तो बैच सिस्टम इजीली उसको हैंडल नहीं कर पाया. अगर कोई प्रॉब्लम, सपोज हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो फेलर प्रॉब्लम है तो कुछ फंक्शन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहा है ड्यू टू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन. ओके, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इजीली हैंडल नहीं कर सकते. ठीक है, इट इज समटाइम्स कॉस्टली, इट इज अ कॉस्टली. ओके, द अदर जॉब्स विल हैव टू वेट फॉर एन अननोन टाइम इफ एनी जॉब फेल. ओके, सपोज कोई एग्जीक्यूशन हो रहा है, ओके अगर वो फेल हो गया, अगर वो जल्दी शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो जो पीछे जो इनपुट्स हमने दिया हुआ है, जो यूजर्स आ रहे हैं, तो उनको वेट करना पड़ेगा. ओके, जब तक सिस्टम अपना काम खत्म नहीं करता. So these are the disadvantages of batch operating systems. And examples you can say payroll system or bank statements. Okay, bank statement जो print करवाते हो आप लोग. That is the example of batch operating system. Batch मतलब क्या, जो भी inputs आ रहा है, ठीक है, you can say inputs भी बोल सकते हो, जो भी inputs आ रहा है उसको batch operating system को उसमें हम जॉब या तो ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको हम लोग जॉब्स बोलते हैं. जो भी इनपुट्स आ रहा है, ठीक है, वो इनपुट्स को क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर पहले कलेक्ट कर रहे हैं. देन कलेक्ट करने के बाद जो सिमिलर इनपुट्स है उनका एक ग्रुप बना रहे, बैच बना रहे, देन उसको एग्जीक्यूट करें. दैट इज कॉल्ड द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, ये आपको याद रखना है. व्हाट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? बैच बनाना, ग्रुप्स बनाना. ओके, तो जितने भी इनपुट्स आ रहे हैं वो इनपुट्स को सिमिलर जो इनपुट्स हैं, ठीक है, जो सिमिलर इनपुट्स हैं उनको डिवाइड करके ग्रुप्स बना के देन उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है. दैट इज कॉल्ड द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस इज अ इजी in way कि आप उसको याद रख सकते हो. what is batch operating system? And one more thing you have to remember, in batch operating system operating system is not directly interact with the system. okay, operating system अलग काम करता है and जो सिस्टम जो है that is different. okay, operating system install नहीं किया हो रहता है in the computer system में. ओके, तो ये आपको मेन थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ अभी हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं करते. ठीक है, अभी हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, व्हाट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम? दैट आई टेल यू. यस, डीबग मतलब क्या,
प्रॉब्लम्स जो अकर हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम्स जो अकर हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई हार्डवेयर फेल हो गया, कोई सॉफ्टवेयर फेल हो गया, ओके, हमको जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट नहीं आ रहा है, ओके, आउट जो भी डिजायर्ड आउटपुट वी वांट वो आउटपुट नहीं आ रहा है, कोई एरर आ गया, ओके, कभी कभी आप देखो आप अपना सिस्टम वर्क करते हो तो ड्यू टू सम फेल सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से या तो हार्डवेयर फेलियर की वजह से यू कैन नॉट एक्सेस योर सिस्टम, ओके, दैट इज कॉल्ड दी बग्स। रीता, ओके, दैट इज कॉल्ड दी बग्स, ओके, एंड बग्स को डिबग करना, उसको आइडेंटिफाई करके उस बग्स जो है, ठीक है, वो बग्स को आइडेंटिफाई करके उसको शॉर्ट आउट करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीबग, उसको क्या बोलते हैं, ओके डीबग, ओके। बग्स मतलब क्या, प्रॉब्लम्स, ओके, जो हमको आउटपुट चाहिए वो आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक, कुछ फेलर हो गया, सॉफ्टवेयर फेल हो गया, हार्डवेयर फेल हो गया, ठीक है, हमको जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट नहीं आ रहा है, हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, कुछ तो एरर्स आ रहा है, दैट इज कॉल्ड दी बग्स। एंड वो बग्स को शॉर्ट आउट करने के लिए जो स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं, उसको रिकवर करने के लिए जो हम लोग करें, दैट इज कॉल्ड दी डीबग। तो बैच सिस्टम आर हार्ड टू डीबग, मतलब जो प्रॉब्लम्स अकर हो रहा है, ठीक है, फेलर अकर हो रहा है तो उसको इजीली हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसको शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है ऑपरेटिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके लिए थोड़ा टफ है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अगर हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है तो वी कैन इजीली रिकवर, ओके, अभी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है कोई प्रॉब्लम्स आ गया तो उसको हम इजीली रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, बट पहले ऐसा नहीं था, व्हाई, बिकॉज दैट वाज इन स्टार्टिंग स्टेज, ठीक है, तब वो इन्वेंट हुआ था, ओके, तो कोई भी चीज मार्केट में न्यू आती है तो पहले हम लोग बेसिक्स उसमें होता, फॉर एग्जाम्पल ले लो नोटपैड, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पहले का हम लोग क्या यूज करते थे, नोटपैड वॉज देयर, अगर आपको पता होगा तो वी वर यूजिंग द नोटपैड, तो नोटपैड में इतना सारा फंक्शनलिटी नहीं था जो अभी वर्ड में अवेलेबल है, ओके। So every time after the updations, there are new features will be added in any software, okay, or any applications. तो वैसे ही फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो था दैट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, वो पहले ऐसे काम करता था, ठीक है, दिस इज वे ऑफ द वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1970s में, कभी 1970s में, ठीक है, उसके बाद टाइम चेंज होता गया, कुछ उसमें जो आईटी है, ठीक है, आईटी प्रोफेशनल्स जो है, आईटी के जो बंदे हैं उन्होंने क्या किया उसमें कुछ इम्प्रूव करते गए, इम्प्रूव करते करते देवर नाउ, अभी हमारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, we have the Android operating system for the mobile phones currently जो हम यूज करें, एंड लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में we are using the Windows operating system, that is a multitasking operating system, okay. The second type that is operating system है multi-programming operating system, ठीक है, multi-programming operating system, okay. So what is a multi-programming operating system? The multi-programming increase CPU utilization. Now what is the meaning of utilization? मतलब क्या, यूज करना, ओके, यूज करना, सीपीयू को ज्यादा सीपीयू को यूज करना, ठीक है। इसमें क्या था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था, सीपीयू कब एग्जीक्यूट करता था, जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको जॉब्स देता था, बिकॉज सीपीयू हैज टू वेट, ओके, फॉर द batches or you can say jobs, okay, the submitted by the operating system. तो सीपीयू को थोड़ा, अगर कोई काम नहीं है सीपीयू को, कि कोई जॉब नहीं आ रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो सीपीयू क्या था, आइडल बैठा हुआ रहता था, ओके, मतलब सीपीयू उतने टाइम के लिए फ्री था, आइडल मतलब फ्री टाइम उसके पास था सीपीयू के पास। बट मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या किया, मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग जॉब्स, मतलब जॉब्स मतलब क्या, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी इनपुट आप दे रहे हो एग्जीक्यूट करने की, दैट इज कॉल्ड द जॉब्स, सो दैट द सीपीयू ऑलवेज हैज वन टू एग्जीक्यूट, मतलब सीपीयू के पास कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस है, आउट रन करने के लिए कुछ ना कुछ उसके पास प्रोग्राम्स अवेलेबल है, ओके। द आइडिया इज टू कीप मल्टीपल जॉब्स इन मेन मेमोरी, ओके, क्या आफ्टर द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इन्वेंटेड, ठीक है। इसमें क्या हुआ, क्या किया कि जो जॉब्स जो है, जो एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, जो एग्जीक्यूट करना है, जो टास्क, उसको कहाँ पे अरेंज किया, मेन मेमोरी में, ओके, कहाँ पे अरेंज किया है, मेन मेमोरी में। एंड आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो दैट आल्सो नाउ इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम, ओके, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी कहाँ पे इंस्टॉल किया है, नाउ सिस्टम में, कंप्यूटर में और लैपटॉप में डायरेक्टली इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं था, ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता था, बट नाउ
operating system is fit into the computer system. Okay, the idea is to keep multiple jobs in main memory. If one job gets occupied with input output device, the CPU can be assigned to other jobs. Okay, for example, this is your memory. ठीक है, आपका जो memory हम लोग बोलते हैं कि memory RAM. How to memory, how the data is stored in memory, तो memory को ना divide किया जाता है. Okay, address दिया जाता है, memory को partitions किया जाता है. For example, 256 का memory हमारा है, तो उसमें partitions किया होगा. ओके, 1 1 MB का या तो 2 2 MB का, जैसे उन्होंने बनाया वैसे. तो मेमोरी में ना पार्टीशंस किया जाता है, जैसे अभी पार्टीशंस, मेमोरी पार्टीशंस. ओके, मेन मेमोरी. ठीक है, मेन मेमोरी में क्या होता है, पार्टीशंस, एक स्पेस होता है. ठीक है, उसमें स्पेस में हर एक जो भी इनपुट्स आ रहा है दैट विल बी स्टोर्ड. ओके, तो फर्स्ट पार्टीशन में ऑलवेज क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम. देन जो भी जॉब्स आ रहे हैं, ठीक है, वो जॉब्स 1 बाय 1, जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट करना है वो कहाँ पे होगा, मेमोरी में 1 बाय 1 स्टोर होगा. देन सीपीयू क्या करेगा, फर्स्ट जॉब एग्जीक्यूट किया, देन सेकंड जॉब, देन थर्ड जॉब. ओके, ऐसे वर्क करता था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जूम एंड जो एमएस वर्ड यूज करें, दैट वी कैन यूज साइमल्टेनियसली, हम लोग पैरेलली यूज करें. ठीक है, मतलब सीपीयू अभी जूम भी एक्सेस कर रहा है एंड वर्ड फाइल भी एक्सेस कर रहा है. तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं, दैट इज अ मल्टीटास्किंग. एक साथ हम लोग बहुत सारे काम कर पा रहे. बट बिफोर मल्टीटास्किंग, ठीक है, बिफोर मल्टीटास्किंग, इसके पहले क्या था, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था. जो भी काम हमको करना है वो मेमोरी में स्टोर होता था एंड सीपीयू विल एग्जीक्यूट 1 बाय 1. कैसे एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू उसको, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा. मल्टी प्रोग्रामिंग, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग. व्हाई मल्टी प्रोग्रामिंग, बिकॉज मल्टीपल जॉब्स और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और यू कैन से मल्टीपल प्रोग्राम्स आर अरेंज इन द मेन मेमोरी. ओके, एंड 1 बाय 1 सीपीयू विल एग्जीक्यूट इट. सीपीयू उसको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा, सब सारा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करेगा. Okay, that is called the multi-programming operating system. After batch operating system, multi-programming operating system comes. Okay, and वो ऐसे work करता था. Now the third is multitasking operating system. The third type of operating system is multitasking. Okay, what is the meaning of multitasking? मतलब क्या, साथ काम करना. मैम हाँ, मैम यूजर को अलाउ करता है टू परफॉर्म मोर देन वन कंप्यूटर टास्क. sorry, I cannot getting your point. Again repeat. मैम यूजर को अलाउ करते हैं टू परफॉर्म मोर देन वन कंप्यूटर टास्क. Yes, that is called the multitasking. Okay, that is called the multitasking. मतलब यूजर को अलाउ करते एक से ज्यादा काम करने के लिए. ठीक है, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग भी होगा. बट सीपीयू क्या करेगा, वो टास्क को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा. कैसे एग्जीक्यूट करेगा, 1 बाय 1. दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग. दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग. ओके, सीपीयू 1 बाय 1 पहले एक अपना एग्जीक्यूशन खत्म किया, देन सेकंड प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, देन थर्ड जॉब का एग्जीक्यूशन. 1 बाय 1 अगर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग. ओके, एंड व्हाट इज मल्टीटास्किंग, कि सीपीयू जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रहा है. सीपीयू जो है एक साथ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहा है. नाउ अभी यहाँ पे जूम भी चल रहा है. ओके, मैं आपको सामने ये वर्ड फाइल भी ओपन करके रखा है. इफ आई वांट टू ओपन द गूगल क्रोम मैंने ओपन किया. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो भी कुछ डाउनलोडिंग के लिए रखा है, तो डाउनलोडिंग भी पॉसिबल है. अगर मैं साइड बाय साइड यूट्यूब का वीडियो चला दूं तो यूट्यूब का वीडियो भी चलेगा. ठीक है, लेक्चर्स भी चल रहा है, यूट्यूब का वीडियो भी चल रहा है, मेरा डाउनलोडिंग भी हो रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग सीपीयू कर रहा है. ओके, मतलब मल्टीटास्किंग, साइमल्टेनियसली एक साथ काम हो रहा है, सीपीयू एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है. ये सारे जॉब्स ही है ना, मैं आपको दिस इज वन जॉब के मैं जूम ओपन करके लेक्चर ले लूं. ठीक है, सीपीयू के लिए वो वन जॉब है. ये वर्ड फाइल में मैं कुछ चेंजेस करूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम चेंजिंग कुछ, यहाँ पे मैं चेंज कर दिया. यहाँ पे मैंने कुछ चेंज कर दिया. ठीक है, तो मैंने उसको चेंज कर दिया, इसमें कुछ बुलेटिंग्स वगैरह मैं लगा रही हूँ. ठीक है, ये मैंने कुछ चेंज कर दिया उसमें, या तो सेव किया. ठीक है, ये चेंजेस अपडेटिंग हो रहा है. ठीक है, तो ये सेकंड जॉब है. ये क्या है, सेकंड जॉब है. ठीक है, देन मैंने गूगल क्रोम ओपन किया. ठीक है, यहाँ से मैं कुछ तो क्लास रखूँ जाके, कुछ तो फाइल्स मैं ओपन करी. फॉर एग्जाम्पल यूनिट 1. ठीक है, यूनिट 1 का ये पीपीटी मैं कुछ तो ओपन करी. ठीक है, उसको मैंने डाउनलोडिंग के लिए रख दिया. दैट इज अ थर्ड जॉब. ठीक है, तो ये क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रही हूँ, दैट इज अ जॉब फॉर द सीपीयू.
सीपीयू के लिए ये काम है, ये जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रही हूँ दैट इज जॉब फॉर दी सीपीयू। तो सीपीयू साइमल्टेनियसली मैं जो भी एक्सेस दे रही हूँ वो सीपीयू परफॉर्म कर रहा है, मतलब मल्टीटास्किंग। क्या है वो मल्टीटास्किंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीटास्किंग? के मल्टीपल जो टास्क जो है, मल्टीपल जॉब्स जो है दैट इज डन बाय द सीपीयू साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस मतलब क्या, एक साथ पैरेलली काम हो रहा है। ये सारा काम कैसे हो रहा है, मेरा पैरेलली हो रहा है। जो मॉडर्न ऑपरेट कंप्यूटर सिस्टम जो है, जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो दैट इज अ मल्टीटास्किंग। व्हाई? बिकॉज ये जो भी टास्क पॉसिबल है, ठीक है, वो विंडोज में पॉसिबल है। ओके, यस, एंड्रॉइड में भी आप कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते हो? तो आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मल्टीटास्किंग। व्हाई मल्टीटास्किंग? बिकॉज मल्टीपल जॉब्स और मल्टीपल प्रोसेस और यू कैन से मल्टीपल रिक्वेस्ट जो भी है वो एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। मोर देन वन टास्क इज एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। साइमल्टेनियसली मतलब क्या, पैरेलली सेम टाइम हो रहा है। इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन टास्क, ओके, एक से ज्यादा टास्क हो ही रहा है। सी, मैं यहाँ पे जूम है, मेरा ये भी वर्ड भी चल रहा है, मैं डाउनलोडिंग के लिए तो डाउनलोडिंग भी होगा, यूट्यूब चला दूँ तो यूट्यूब भी हो जाएगा मेरा ऑन, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग। तो इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन टास्क इज एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम बाय द सीपीयू, बाय द सीपीयू। ओके, in this technique multiple tasks also known as process, okay, मैंने आपको वही बोला multiple tasks मतलब process you can say, jobs you can say, all are the similar words, confuse नहीं होना, ठीक है। jobs मतलब भी process, process, okay, या तो multiple task, task मतलब process, process मतलब jobs, all are the similar words, okay, share common processing resource such as CPU। अब ना मेरे सिस्टम में एक ही सीपीयू, एक ही प्रोसेसर है, बट एक प्रोसेसर है वो भी ये सारा काम मैं कर सकती हूँ, ठीक है। मेरे पास ऐसे नहीं कि मल्टीपल सीपीयू, ऐसे नहीं है, मेरे पास एक ही सीपीयू है, बट वो एक सीपीयू है तो भी मैं अपना ये सारा काम एक साथ कर सकती हूँ मेरे सिस्टम में। तो दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। एंड व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग? ये स्लाइट डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस, माइनर डिफरेंस है। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होगा, मेमोरी में जितने भी रिक्वेस्ट है वो स्टोर तो एक साथ हो जाएगा, मतलब, बट उसको कैसे रन करेगा सीपीयू वन बाय वन, सीपीयू कैसे उसको, ability to execute multiple programs, na ma'am? sorry, yes, Ability to execute multiple programs, na? yes, okay, but one by one in multi-programming and simultaneously at the same time in multitasking. Clear? Okay, Muzaffar. Yes, ma'am. Okay, good. Okay, तो दिस इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मोस्टली सबके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं वो हमारा कौन सा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एक जो नोकिया का एक फोन आया था बीच में, वो नोकिया के फोन में भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था, अगर किसी ने यूज किया होगा तो पता होगा, ठीक है। बाकी सारे मोबाइल फोन्स में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट जो नोकिया का जो फोन था ना, उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा जो है दैट इज सीपीयू वन सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें हम लोग मल्टीपल टास्क वी कैन यूज साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। एंड मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब क्या, सीपीयू में जो प्रोग्राम्स जो है, या तो जो जॉब्स है, या तो जो टास्क जो है यू कैन से, ओके, उसको वन बाय वन सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। वो एक साथ मेमोरी में स्टोर तो हो जाएगा, बट सीपीयू उसको कैसे करेगा, एग्जीक्यूट वन बाय वन। पहले वर्ड का काम खत्म हो गया, देन उसको मैं जूम ओपन कर सकती हूँ, मेरा जूम का काम खत्म हो गया, देन मैं डाउनलोडिंग कर सकती हूँ, ओके। मैं मल्टीपल टास्क तो कर सकती हूँ, बट कैसे, वन बाय वन। व्हाई? बिकॉज सीपीयू आर एग्जीक्यूटिंग द जॉब्स वन बाय वन, इन विच केस, इन विच टाइप, मल्टी प्रोग्रामिंग टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। बट इन द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम से मैं सब एक सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे मैं ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकती हूँ, जूम भी कर चलाना, वीडियो भी चलाना, डाउनलोडिंग भी करना, ओके, दैट इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग। डिफरेंस क्लियर, व्हाट इज मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? हमारा विंडोज जो है दैट इज मल्टीटास्किंग, जो डायरेक्टली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है, एंड हम लोग साइमल्टेनियसली एक साथ सेम टाइम पे हम लोग मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग। Yes, now anyone has any doubt in these two type of operating system, multitasking and multi-programming?
बैच वॉज डिफरेंट, वो तो अलग ही था, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में वी रिक्वायर्ड दी वन ऑपरेटर्स, हमको किसकी जरूरत पड़ती थी, ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। ऑपरेटर्स विल हैंडल ऑल दिस थिंग्स एंड दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं किया था, ठीक है। बट नाउ अभी मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डायरेक्टली इंस्टॉल्ड इन आवर सिस्टम, ओके। आपका विंडोज जो है वो आप ऐसे नहीं है कि आप कंप्यूटर लेके आते हो और फिर आपको उसमें विंडोज इंस्टॉल करना पड़ता है, नो, ओके। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन आवर सिस्टम, ठीक है। आपको हमारे सिस्टम जब हम लैपटॉप लेके आते हैं, डेस्कटॉप न्यू परचेज करके आते हैं, तो उसमें ऑलरेडी हमको इंस्टॉल करके देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अभी न्यू लेने जाओगे तो विंडोज का न्यू वर्जन वो लोग इंस्टॉल करके देंगे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडोज 10, ओके, विंडोज जो भी मार्केट में चल रहा है, जो भी वर्जन चल रहा है, दैट विल बी इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम, सो दैट इज अ मल्टीटास्किंग। अभी हम लोग जो यूज करें दैट इज मल्टीटास्किंग, ओके। ये मल्टीटास्किंग है ना, ये जूम है, मुझे किसी को चैटिंग में कुछ मैसेज डालना है दैट आई कैन डू, ठीक है। डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकती हूँ, वर्ड फाइल ओपन करना है तो वर्ड फाइल ओपन करती हूँ, अनदर डॉक्यूमेंट्स आई वांट टू ओपन दैट आई कैन आल्सो डू, ठीक है। तो ऑल आर द मल्टीटास्क, ये सब क्या है, मल्टीटास्क है, मैं एक साथ बहुत सारा काम कर पा रही हूँ। तो ये पॉसिबल है, ये कौन से, ये मेरा सिस्टम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डेस्कटॉप में, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज। ये कौन सा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, okay. And every operating system has different functionalities and different GUI, okay. GUI मतलब क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, अलग अलग है। अभी अगर मैं इसको, मेरा अभी ये विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगर मैं उसको विंडोज 10 डाल दूंगी तो मेरा जो लुक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मेरा डेस्कटॉप जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ मुझे थोड़ा न्यू फंक्शनलिटी मिलेगा। अब विंडोज 10 में अपना न्यू फीचर्स डाला हुआ है, ठीक है, कि उसमें थोड़ा सा अपीयरेंस जो है, लुक्स जो यूजर इंटरफेस जो है वो बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज थोड़ा एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है। तो एवरी वर्जन में कुछ न्यू न्यू अपडेट होके आता है, ठीक है, okay. So that is multitasking operating system. Types of multitasking operating system, okay. There are two types of multitasking operating system. The first is cooperative multitasking and the second one is preemptive multitasking, okay. Let's see, देखते हैं one by one, okay. Types of, actually ये ना मेरा फाइल का सिस्टम थोड़ा अलग हो गया, okay. Types of multitasking operating system. Yes, multitasking operating system clear na? Anyone has any doubt? Multitasking and multiprogramming. Yes, कौन मुझे बताएगा what is multitasking and what is multiprogramming? What is the difference between these two operating system? Yes, yes, students. What is multitasking and what is multiprogramming? Multi-programming, we execute program one by one. Yes. And in multitasking, all the programs are set simultaneously. Very good. Good. Okay. So in this way, you have to remember, students. Good. Okay. So anyone has any doubt or the students, please they can ask me. Okay. But confusion नहीं रखना है. अगर मैं पूछूं कि which operating system is multitasking operating system, तो कौन सा operating system multitasking है? Which operating system is multitasking operating system? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है? विंडो मैम। हाँ, विंडोज एक ही, ओके। हम लोग अभी एक ही यूज करते हैं विंडोज। अब सब लोग, हम लोग डेस्कटॉप में, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में एक ही यूज करते हैं विंडोज। हमको एक ही पता है विंडोज, और हमको पता है कि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग मल्टीपल जो टास्क है हम लोग एक साथ कर पा रहे हैं, दैट इज अ मल्टीटास्किंग। तो विंडोज इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। गुड कासिम, ओके। कैफ, गुड, ओके। तो स्टूडेंट प्लीज बी एक्टिव इन दी लेक्चर्स, ठीक है। जो भी आ रहा है, ऐसे नहीं कि मुझे राइट आंसर चाहिए, आपको जो भी समझ में आ रहा है, मैं ऐसे बोलूंगी नहीं कि रॉन्ग क्यों बोल रहे हो, ठीक है। बट आई विल अप्रिशिएट के आंसर दे रहे हो, ओके। तो प्लीज बी एक्टिव इन एवरी लेक्चर्स, ओके। जो भी आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यू कैन शेयर विथ मी कि मैम ये ऐसे क्यों है, व्हाई दिस, अगेन एक्सप्लेन, ठीक है। तो इंटरेक्टिव सेशन होगा, अदरवाइज
थियरी, दिस इज अ थियरी सब्जेक्ट सी स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल हम लोग आफ्टर दी सेकेंड थर्ड यूनिट की बात करेंगे, दैट वो भी कमांड ही होगा, ठीक है। तो मेन उसमें थियरी इंपॉर्टेंट है, तो थियरी सब्जेक्ट्स में यू हैव टू आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ऊपर से जाएगा सब। यस, there are two types of multitasking operating system. The first is cooperative and the second is preemptive multitasking. Okay, let's see what is cooperative multitasking. Multitasking तो आपको पता है what is multitasking, ठीक है, उसका two types है. The first is cooperative. Now देखते हैं what is cooperative. Windows and Mac OS use cooperative multitasking. A Windows program would do some small unit of work in response to message and then relinquish the CPU to operating system until the program got another message. Okay, that's work well as long as programs were written. I